Hello, everyone. My name is Divya Akhori, and I have secured a rank of 101 in the Civil Services Examination 2020. आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और अपनी जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए इकोनॉमिक्स में किया है फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया है इन सोशियोलॉजी फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन मैंने अपने बीए के सेकेंड ईयर में करने का सोचा था। सेकेंड ईयर में आई वॉज लुकिंग एट द नंबर ऑफ करियर प्रॉस्पेक्ट्स दैट आई हैव। उस समय आई डिसाइडेड टू सीरियसली कंसिडर सिविल सर्विसेज। मैंने सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखा था एंड मुझे देख के ऐसा लगा दैट देर आर अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर अलाइंड विथ ह्यूमैनिटीज। एट द सेम टाइम मेंस जो स्टेज है उसमें मुझे लगा दैट अगर आपके पास राइटिंग स्किल है तो यू कैन प्रॉबली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो एक तो एग्जाम का नेचर देख के मुझे लगा दैट दिस इज एन एग्जाम दैट आई कैन प्रॉबली क्लियर। I also spoke to a number of people about the prospects of a career in civil services. और उसके थ्रू मुझे पता चला about the number of opportunities that the service offers you, the social inclination of the service, and the diversity of roles that you perform once you get into the service. So ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी interesting लगी and I think I spoke to my parents and then very logically I took the call of starting my UPSC preparation. इन परसुएंस ऑफ दैट मैंने यूनिक अकेडमी ज्वाइन की। यूनिक अकेडमी का 3 years इंटीग्रेटेड बैच है जिसमें आई इनरोल्ड इन 2014 आई थिंक। और उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया दैट आई वुड प्रॉब्ली फर्स्ट वांट टू आइडियली गेट डन विथ माय मास्टर्स एंड देन गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दैट इज व्हाट आई डिड। 2018 was when I wrote my first attempt. As far as the role of Unique Academy in my preparation is concerned, I think मैं ये definitely कह सकती हूँ that at every step of the examination, Unique Academy has played a crucial role in my preparation. Particularly, Praveen Chavan sir, who I consider my mentor in this particular journey. चाहे वो prelims के लिए basic strategy decide करना हो या मेंस के लिए आंसर राइटिंग इम्प्रूव करना हो, essay के पेपर्स को इवेल्युएट करना हो और इवन इंटरव्यू गाइडेंस, इन सब स्टेजेस पे मुझे यूनिक अकेडमी और प्रवीण सर का काफ़ी सपोर्ट मिला। एंड वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी इज़ टू हैव अ मेंटर हु कैन गाइड यू करेक्टली, और ये काफ़ी मिसिंग भी है, बट आई वॉज एक्सट्रीमली लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। एज फार एज द डिफ़िकल्टीज आई फेस्ड इन दिस जर्नी आर कंसर्न, आई थिंक सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो मुझे हुई वो ये थी कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग हॉल। आई थिंक सब हमें कहते हैं दैट व्हेन यू एंटर इनटू दिस इनटू द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, आपको अपना 3 से 5 साल लाइफ का यू हैव टू सेट इट असाइड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, and for some reason I was not prepared for it. I thought that like many other we are always optimistic. I thought that probably first attempt would be the one that I would strike in. So when I did not manage to clear prelims in my first attempt and then again in my second attempt, I think that dealt a blow somewhere. And इसके लिए मैं mentally emotionally prepared नहीं थी. So the biggest difficulty I think would be the emotional strain that you find yourself in when you put in all your efforts and you still do not get the desired result. I think इस समय you become extremely vulnerable, and therefore my advice to students would be that if you are suffering from something like this, if you have faced any such failure, don't cocoon yourself. अपने आप को आप isolate मत करिए. Make sure you are still connected with your family. In my case, my mother, my father, and my younger brother, they acted as my pillars of strength. At the same time, Praveen sir provided me the external motivation that you need. When you do not manage to clear a number of attempts, what happens is that आपका self confidence affect होता है, and that happened in my case as well. But having a mentor in this case really helped me, because when you see somebody else has so much faith in you, it makes you push forward. At the same time, it is very important कि आप एक अपना reliable friend circle maintain करिए. ऐसे समय में आई नो ये परसेप्शन है दैट यू हैव टू
completely isolate yourself from the world, because ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी का एग्जाम तपस्या है and so on. But what I would say is that always put your mental health, your emotional health first. Because मेरे first two attempts जिसमें I was underconfident, I was not sure about what I was doing, I was second guessing myself, I did not get the desired result. But in my third attempt, when I tried to prepare as per my requirements, my own needs, when I refused to isolate myself, जब आई रिलाइड ऑन माई फ्रेंड्स, मैंने अपने कई दोस्तों से सपोर्ट मांगा, बी इट क्लियरिंग प्रिलिम्स और प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स, अ नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स offered help to me. And the fact that I've cleared this examination today is because of the kind of social circle that I had cultivated in the past 2 to 3 years. Therefore, I would recommend कि अपने आप को आप isolate मत करिए. As far as the strategy for this examination is concerned, I would get to that next. Let's talk about prelims first, because that was something that I truly struggled with. But finally, in my third attempt, I was able to get a score of around 112. And I think what worked here was that मुझे ये समझ में आ गया था by my third attempt that it's not a test of your knowledge. मैं जो भी sources हो सकते थे, I'd read all of that. Particularly जो static part होता है, जो predictable part होता है इस preparation का, which helps you answer about 35 to 45 questions. वो part मेरा मुझे लग रहा था कि मैंने प्रिपेयर किया है, जिसके लिए वी रेफर टू बेसिक बुक्स, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो या स्पेक्ट्रम हो फॉर हिस्ट्री. ये सारी बेसिक बुक्स मैंने कवर कर ली थी, एंड आई हैड रीरेड देम, रिवाइज देम अ नंबर ऑफ टाइम्स, एंड डेफिनेटली दैट हेल्प मी gain a clearer understanding of concepts and secure the static part of my preparation. But third attempt आते आते मुझे ये realize हो गया that prelims is also a lot about logic and guesswork. So इस sense में मुझे ये समझ में आया that going back to past papers is extremely crucial. चाहे आप कितने भी टेस्ट सॉल्व कर लें, मुझे मेरे प्रिपरेशन में ये रियलाइज हुआ दैट मोर देन एनी टेस्ट सीरीज इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू रेफर टू पास्ट पेपर्स. पास्ट पेपर्स से आपको सेंस आता है दैट यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम किस तरह करता है, एंड व्हेन यू हैव अ सेंस ऑफ दैट इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन जहां यूपीएससी ट्राइज टू मैनिपुलेट यू. And therefore I think it's very important once you start looking at past papers, तो prelims का preparation then stops being cumbersome. आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा in preparing for prelims if you always keep past papers next to you. Unlike prelims, which I think has become extremely predictable, mains का stage मुझे लगता है कि relatively it is more predictable. And आज मैं basically 2 papers के बारे में बात करूँगी. The first would be about optional. मेरा optional sociology था, so I would briefly discuss that, and then I would talk about essay, which is I think the paper that helped me secure the rank that I got. Sociology की बात करें तो there are basic sources that everyone refers to, और मैं कहूँगी कि मेंस के प्रिपरेशन में basic sources को रेफर करिए और अपने sources को limited रखिए. तो जैसे sociology की बात की जाए तो I refer to इग्नू के BA और MA के जो नोट्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट नितिन सांगवान की एसेंशियल सोशियोलॉजी की किताब आती है, आई रेफर टू दैट, एंड देन सेलेक्टेड चैप्टर्स फ्रॉम हरलोम्बस. सो ये मेरे बेसिक बुक्स थे. इसके अलावा आई ट्राई टू लिमिट माई सोर्स टू द एक्सटेंट पॉसिबल. व्हाट आई थॉट रियली हेल्प्स वाज फिनिशिंग द सिलेबस. मेंस के किसी भी पेपर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फर्स्ट टारगेट इज टू फिनिश द एंटायर सिलेबस. सोशियोलॉजी के लिए भी मैंने यही किया, एंड आफ्टर फिनिशिंग द सिलेबस व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि आप ब्रेनस्टॉर्म करिए और आप आंसर राइटिंग करिए. ब्रेनस्टॉर्म के लिए पास्ट पेपर्स आर वेरी इंस्ट्रक्टिव. आप पास्ट पेपर्स की जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, उससे आप सोचिए दैट इफ यू वर इन अ पोजिशन दैट इफ यू हैड टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, हाउ वुड यू अटेम्प्ट देम. प्रॉबेबली राइट इट आउट. एंड फाइनली आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन में आई वुड से दैट रेफर टू टॉपर्स कॉपी. टॉपर्स कॉपी से आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें किस तरह से अपने आंसर्स फ्रेम करने हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स दैट वी कैन यूज इन ऑर्डर टू मेक आवर आंसर्स लुक मोर ब्यूटिफुल. सो ये मेरे लिए आई थिंक दिस वर्कड इन सोशियोलॉजी. इट हेल्प मी अ लॉट. एंड द सेकेंड पेपर दैट हेल्प मी अ लॉट वाज essay पेपर. आई सिक्योर्ड 145 मार्क्स इन द essay पेपर. एंड ऐसे की प्रिपरेशन के लिए बेसिकली ऐसे किसी भी ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है. वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे एंड द अदर इज द नैरेटिव ऑफ द ऐसे.
द स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे लार्जली हर किसी का सेम ही रहता है. एक इंट्रो होता है, एक बॉडी होता है, एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन. एंड बॉडी में बेसिकली हम दो चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं. वन, वी ट्राई टू इंश्योर दैट आवर बॉडी इज मल्टी डायमेंशनल. जितने भी डायमेंशंस को वी कैन कवर, वी ट्राई टू कवर इट इन द बॉडी. एट द सेम टाइम वी ट्राई टू इंश्योर कि ये डेटा ड्रिवन है. वट एवर आई एम सेइंग इज बैक्ड बाय एविडेंस, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर किसी एग्जाम्पल के थ्रू हम अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर सकें. ये लार्जली बॉडी होती है, एंड एवरीबडी हु हैज प्रिपेयर्ड फॉर मेंस रफली हैज द सेम काइंड ऑफ नॉलेज व्हेन इट कम्स टू राइटिंग द बॉडी. I think what makes a difference in the essay paper is the narrative that you use. Narrative का मतलब ये है that कहीं ना कहीं आपके जो राइटिंग्स के लिए उसमें persuasion होना चाहिए. एंड ये persuasion आप अपने इंट्रो और कंक्लूजन में स्पेसिफिकली दिखा सकते हैं. और इस नैरेटिव स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक यू हैव टू not restrict your creativity. Be as creative as possible. Unlike the other GS papers, जहाँ पे एक basic set pattern है, the beauty of the essay paper is that it allows you to be as expressive as possible. इसीलिए अगर आपने कोई मूवी देखी है, I remember a friend of mine, he had made reference to Harry Potter in his essay paper and got very good marks. Similarly, as far as my essay paper was concerned, I made reference to a number of Indian mythology. So I had referred to रामायण, महाभारत. एट द सेम टाइम मॉडर्न हिस्ट्री में कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे हम यूज़ करके अपने ऐसे को इन्हांस कर सकते हैं. तो जैसे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हो गए महात्मा गांधीज एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. सिमिलरली सम्राट अशोक स्टोरी टूवर्ड्स बिकमिंग धम अशोक. ऑल ऑफ दीज आर things that we have encountered in our preparation. For essay, I think ये एक छोटी सी डायरी बना के उसको लिख लेना, and then going back to it again and again really helps. Essay is mostly about brainstorming and then having the ability to use beautiful words in your writing, and that comes when you don't restrict your creativity. So I think broadly ये मेरा strategy रहा for my optionals and for the essay paper. I think my final advice to students would be कि अपने preparation को आप customize करिए. First you need to understand what UPSC wants. Then आपको खुद self assessment से ये decide करना होगा where do you stand. आपके strengths क्या हैं और आपकी weaknesses क्या हैं. And you have to play on your strengths and minimize your weakness. If you are self-aware throughout this journey of your preparation, I think आप एक ज़्यादा better position में होंगे to be able to clear this examination. So thank you for giving your time.